Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you must be watching the videos, your English videos, and you must be knowing that which unit we are doing. Children, we are doing unit 15 in your English grammar book. Unit 15 of your superb English grammar book, which is about nouns, more about nouns. Children, you have studied about nouns, types of nouns, some types of nouns. And in this unit, you are studying about singular and plural form of nouns and masculine and feminine gender. Children, we have already completed the singular and plural form of nouns and we have started the gender. जेंडर हमने अपने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था कि जेंडर्स कितने तरह के होते हैं? 4. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स. masculine gender which denotes male, feminine gender which denotes female, and common gender that can be used for male and female both, and neuter gender words which have no genders, जिन वर्ड्स के जेंडर्स नहीं होते हैं. तो ये हमने 4 टाइप के जेंडर्स पढ़े थे. ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. मस्कुलिन, यहाँ हमारा टॉपिक है जेंडर. मस्कुलिन जेंडर, देन फेमिनिन जेंडर, feminine gender, common gender, and neuter gender. ओके, ये हमने 4 टाइप्स ऑफ जेंडर्स हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा. Children, as I have told you, masculine gender denotes male nouns. जो नाउन मेल से रिलेटेड होते हैं उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं. जो फीमेल से रिलेटेड होते हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. और कॉमन जेंडर वो जेंडर होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं. मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं. और न्यूट्रल जेंडर ये होता है, बेसिकली ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है जिसका कोई भी जेंडर नहीं होता है. ठीक है, तो हमने इन सब को डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में और कुछ हमने मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के बारे में जाना भी था. तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. विल हैव सम मोर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स, वो हम पहले कर लेंगे. उसके बाद हम कुछ कॉमन जेंडर्स पढ़ेंगे और न्यूटर जेंडर्स भी पढ़ेंगे. ओके, सो take out your grammar book and it is page number 65. पेज नंबर 65 आप खोलिए अपनी ग्रामर बुक का. ओके, लेट मी ड्राफ्ट दिस. Masculine and feminine. Children, we have written in my last video we have done few masculine and feminine genders, that is sir, and the opposite gender is ma'am. Sir is masculine gender and ma'am is feminine gender. Then we had done brother. Brother is masculine gender and its female gender is, feminine gender is sister. Then uncle. Uncle is masculine. Aunt or auntie is feminine. Then landlord. Masculine gender is landlord and its opposite female gender, feminine gender is landlady. Landlady. Then grandmother. Grandfather. Grandfather is masculine gender and its opposite gender is grandmother. Then it was prince. Next is prince
Prince is masculine and its feminine gender is princess. The next is king. King is masculine gender and its opposite gender is queen. Then the next one is hero. Hero is masculine gender and its feminine gender is heroine. Then we have actor and its opposite gender is actress. Children, I was explaining you about actor. That's why I wanted to write actor and its opposite gender is ACT. Now children, here it is OR, but while writing actress, we will not write OR, we will write ACTRESS, actress. We will drop this O. ये हम O को हटा देते हैं और simply R लिख के ESS. And I have told you that I will tell you some more word where the opposite gender has ESS. Sometimes we have to change the spelling and sometimes we need not have to change the spelling. कभी कभी हमें स्पेलिंग चेंज करना पड़ जाता है और कभी कभी हमारा बिना स्पेलिंग चेंज किए ही हम उसमें सिर्फ ESS ऐड कर देते हैं और हमारा ऑपोजिट जेंडर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई से लायन, LION, लायन. नाउ चिल्ड्रन, लायन इज अ मैस्कुलिन जेंडर, मेल है. शेर को बोलते हैं ना लायन, तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है? लायन है. और इसका ऑपोजिट जो जेंडर होगा, जो फेमिनिन जेंडर होगा, वो क्या होगा? आप लायन की स्पेलिंग लिखेंगे, LION, लायन लिखा, और उसमें हम क्या करेंगे? ESS ऐड कर देंगे. ओके, जैसा कि इसमें किया है. बट हियर वी हैव चेंज द स्पेलिंग. यहाँ ओ हमने हटा दिया है, बट हियर वी हैव नॉट चेंज द स्पेलिंग ऑफ लायन. पहले हमने लायन लिख दिया है और उसी में हमने फिर ESS लगा दिया है. Okay, let me give you one more example, that is HOST, host. HOST, host. ये क्या है? Host is a masculine gender, ये मेल है. तो इसका जो फीमेल जेंडर होगा, जो ऑपोजिट जेंडर जो इसका होगा, वो क्या होगा? होस्ट का ऑपोजिट होता है होस्टेस. HOST आप लिखेंगे, स्पेलिंग आप होस्ट की लिख लिया और आपने इसमें ESS लगा दिया, हो गया. होस्ट, होस्टेस. गॉट इट? देयर आर सर्टेन वर्ड्स वेयर द स्पेलिंग इज चेंज्ड. वहां पे क्या होता है कि आपको स्पेलिंग चेंज करना होता है. जैसे अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, टाइगर, TIGER, टाइगर. अब टाइगर तो मैस्कुलिन जेंडर है. टाइगर इज अ मैस्कुलिन जेंडर. अब इसका फीमेल क्या होगा? इसका फीमेल जो जेंडर है वो है टाइग्रेस. टाइगर का क्या है? टाइग्रेस. और इसकी स्पेलिंग फिर चेंज हो जाती है. यहाँ पे TIG लिखेंगे, यहाँ ER है ना, तो हम E को ड्रॉप करेंगे और सिर्फ R लिख के ESS. गॉट इट? ये वाला जो E है, दिस E वी हैव ड्रॉप्ड हियर. यहाँ हमने वो E नहीं लिखा है, TIG लिख दिया है और RESS, टाइग्रेस. हमने यहाँ पे जो E था उसको ड्रॉप कर दिया, उसको हटा दिया है. ठीक है, और हमने फिर R लिखा और ESS, टाइगर, टाइग्रेस. तो हियर ऑल्सो द स्पेलिंग इज चेंज्ड. हमने एक लेटर को ड्रॉप कर दिया है. टाइगर, टाइग्रेस, टाइगर, टाइग्रेस. ऐसा ही हम एक और आपको एग्जाम्पल बता देते हैं. Another example is emperor, EMPEROR, emperor. emperor क्या है? जो सम्राट बोलते हैं, महाराज, जो सम्राट. emperor is a masculine gender. ये masculine gender है emperor. अब इसका जब हम ऑपोजिट जेंडर लिखते हैं, जब इसका हम फेमिनिन जेंडर लिखेंगे, तो अगेन हियर स्पेलिंग विल बी चेंज्ड. कैसे चेंज होगा? यहाँ हो जाएगा आपका EMP, और ये वाला जो E है इसको हम ड्रॉप कर देंगे, EMPRESS. पूरा मतलब हमने ये यहाँ से स्पेलिंग चेंज कर दिया. एम्परर, एम्प्रेस, एम्परर, एम्प्रेस, एम्परर, एम्प्रेस. EMPEROR, एम्परर, and EMPRESS, empress.
ठीक है, तो इसमें भी हमारी क्या हो रही है, स्पेलिंग चेंज करना पड़ रहा है हमें, वी हैव टू चेंज द स्पेलिंग हियर। जब हम फेमिनिन जेंडर लिख रहे हैं तो वी आर चेंजिंग द स्पेलिंग, हम स्पेलिंग को चेंज कर रहे हैं। चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो दैट आई विल गिव यू एग्जांपल्स, है ना, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ESS वाले आपको एग्जांपल्स और दूंगी। दो दीज नाउन्स आर नॉट गिवन इन योर बुक, आपके बुक में ये नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टाइगर दिया है और लायन दिया है, ओके, एंड एक्टर दिया है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन यू दिस काइंड ऑफ ऑपोजिट जेंडर। आपकी जो बुक है उसमें टाइगर है, लायन है और एक्टर है बस, बट आई वांटेड टू टेल यू बाय गिविंग मोर एग्जांपल्स दैट in some cases we simply write the masculine gender and add ESS, and in some cases we have to change the spelling, हमें स्पेलिंग में चेंजेस करने होते हैं। भले हमें सुनने में सेम लगता है टाइगर टाइगरिस, तो लगता है कि टाइगर की स्पेलिंग लिखनी है और ESS तो लगाना है, पर ऐसा नहीं है ना। हमें लगता है कि एम्परर है तो एम्परस लिखने के लिए एम्परर की स्पेलिंग लिखनी है और ESS लगाना है, बट ऐसा नहीं है। In such cases you have to change the spelling. Got it? और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं ESS वाले। Let me give you some more examples. आपको मैं एक दो एग्जाम्पल और दे सकती हूँ। हंटर, तो छोटा लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा, है ना, HUNTER। हंटर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, हंटर इज मैस्कुलिन जेंडर। अब इसका फेमिनिन जेंडर हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, HUNTER लिख के क्या करेंगे, दिस इज नो, हियर अगेन वी हैव टू चेंज द स्पेलिंग, HUNTRESS, जहां हमने फिर ये वाला E ड्रॉप कर दिया, ओके, ये एक लेटर हमने यहां से हटा दिया। हंटर, हंट्रेस, हंटर, huntress. Then we have some more like steward, 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 steward होते हैं ना जो होटल में, वो क्या है, स्टीवर्ड क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। अब इसका जो हम अगर फेमिनिन जेंडर लिखेंगे तो वी विल राइट द सेम स्पेलिंग, हम पूरी वो स्पेलिंग लिखेंगे और उसमें ESS लगा देंगे। विल राइट STEWARD लिख के और ESS, हियर नो स्पेलिंग विल बी चेंज, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड्स, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड्स। गॉट इट? यहां पर स्पेलिंग चेंज नहीं हो रही है। स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, सेम वही स्पेलिंग है और उसमें हमने ESS लगा दिया। गॉट इट? तो ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स हैं, बट इतना आपके लिए काफी है, आपके ग्रेड के लिए काफी है ये समझना कि ESS वाले जो फेमिनिन जेंडर होते हैं उसमें कभी होता है कि हम मैस्कुलिन जेंडर वाले ही वर्ड्स लिख के उसमें ESS लगाते हैं और कभी हमें थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि टाइगर में, जैसे कि एक्टर में, जैसे कि एम्परर में, ओके, तो हंटर में, इन सब में हमें क्या है, स्पेलिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा उसका फेमिनिन जेंडर लिखने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक्टर, एक्ट्रेस, लायन, lioness, host, hostess, tiger, tigress, emperor, empress, hunter, huntress, steward, stewardess, stewardess, steward बोल के then ESS, stewardess. Now children will take other examples, other हम जो masculine और feminine gender करेंगे, all that is given in the book as well as some extra, not more but some extra. Children, next is monk, MONK.
Children, pronunciation is monk. MONK, monk नहीं है, it's called monk. और monk क्या है? Masculine gender है. Monk is masculine gender. Monk is masculine gender and its feminine gender is nun. N-U-N. Monk is masculine gender. Feminine gender is nun. N-U-N, nun. Then peacock. P-E-A-C-O-C-K. Peacock. Peacock आपको पता है, आपने देखा भी है, कलरफुल उसके जो टेल होती है, प्लमेज होता है, दैट इज वेरी कलरफुल, ब्राइट. तो ये मैस्कुलिन है. पीकॉक इज मैस्कुलिन जेंडर. तो इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? चिल्ड्रन, पी तो रहेगा ही, कॉक की जगह हो जाएगा हेन. पी हेन. पीकॉक, पी हेन. पीकॉक एंड पी हेन. नेक्स्ट इज बुल. B-U-L-L, bull. Bull is masculine gender. Bull जो है वो masculine gender है और इसका जो opposite gender है वो होगा cow. Bull, cow. Bull, cow. Then we have horse. Horse. Horse का फीमेल क्या होगा? फीमेल जेंडर, फेमिनिन जेंडर. स्टूडेंट, हॉर्स का फीमेल जेंडर होता है मेयर. हॉर्स, मेयर. हॉर्स, मेयर. नेक्स्ट इज डॉग. D-O-G, डॉग. डॉग का क्या होगा? बच्चे होते हैं डॉगी आया, डॉगी कोई वर्ड नहीं होता बेटा. डॉग होता है और उसका ऑपोजिट जेंडर होता है बिच. B-I-T-C-H. डॉग एंड बिच. डॉग एंड बिच. देन ड्रेक. ड्रेक का ऑपोजिट क्या होगा? क्या होगा? डक. जो बत्तख होता है ना, तो उसमें ड्रेक जो है वो मैस्कुलिन है और डक उसका फेमिनिन है. ड्रेक इज मैस्कुलिन एंड डक इज फेमिनिन. ड्रेक, डक. देन द वर्ड इज फॉक्स. F-O-X, फॉक्स. एनी आइडिया फॉक्स का क्या होगा? यस, विक्सन. V-I-X-E-N. फॉक्स, विक्सन. फॉक्स, विक्सन. देन गैंडर. और इसका फीमेल क्या है? फेमिनिन क्या है? गूस. गैंडर, गूस. ओके. आई होप ये जो आपकी बुक वाले थे, ये जो मैंने आपको बता दिया कि बुक में थे, इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं. देन आई विल गिव यू सम मोर. 2-4 आपको और बता देती हूँ. वैसे बहुत सारे जेंडर्स के वर्ड्स हैं, नाउन है, बट फॉर योर ग्रेड, फॉर grade 2 वी शुड नॉट बी डूइंग मच. जितना आपकी बुक में है दैट इज सफिशिएंट, वो आपके लिए काफी है. लेकिन स्टिल एक दो और, जैसे मैंने आपको ESS वाले बताए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि 1-2 और आपको मैं बता दूं. जैसे शीप. शीप का क्या होता है? शीप का जो होता है SHEEP. तो शीप का होता है EW. शीप जो है, या उसको हम रैम बोलते हैं, रैम ही बोल देते हैं. इसका प्लूरल जो होता है वो एक्चुअली में, इसका मैस्कुलिन होता है रैम और उसका जो फेमिनिन होता है वो है EWE. रैम, E. रैम, E. RAM. Then we have stag. हिरन जो होता है ना, स्टैग, बड़े बड़े सींगों वाला जो होता है स्टैग. और स्टैग क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है और इसका फेमिनिन होता है हाइंड. HIND.
स्टैग, हाइंड। स्टैग का जो फीमेल जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, वो है हाइंड। देन मेड सर्वेंट, सॉरी सर्वेंट, एंड इसको मैं मिटा देती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर। सर्वेंट, सर्वेंट इज मैस्कुलिन जेंडर, नौकर जिसको बोलते हैं ना, सर्वेंट इज मैस्कुलिन जेंडर, और इसका फेमिनिन होता है मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ओके, सर्वेंट, मेड सर्वेंट। मिल्कमैन, मिल्कमैन, इसका फेमिनिन जेंडर क्या होगा? जैसे सर्वेंट का मेड सर्वेंट होता है, तो मिल्कमैन का मिल्क मेड, MILK, मिल्क, MAID, मेड। मिल्कमैन, मिल्क मेड, मिल्कमैन, मिल्क मेड। आई थिंक आपको मैंने काफी सारा बता दिया है जो आपकी बुक में थे, और उसके अलावा मैंने आपको 5-6 और बता दिया है। आई होप आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर जो है वो अब क्लियर हो गया है कि जब मेल होता है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं, और जो फीमेल होता है नाउन, उसको बोलते हैं हम फेमिनिन जेंडर। तो दीज टू वी हैव डन, some we have done, and now some exercises are there based on these masculine and feminine gender. इन्हीं पे बेस्ड कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो मैंने आपको करवाया है, उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज है, एंड दैट वी हैव टू डू नाउ। उसको अब हम करेंगे, ठीक है। Exercise is given on page number 65 only. Exercise 1 is write M for masculine and F for feminine. मतलब आपको इसमें क्या करना है? इस एक्सरसाइज में you have to write M. आपको M लिखना है for masculine, and F for feminine. M for masculine and F for feminine. इसको हम अब करेंगे। तो कुछ यहाँ पे nouns दिए हुए हैं, and you have to tell whether they are masculine or feminine. If they are masculine, you will write M. If it is feminine, you have to write F. Got it? अगर वो masculine gender है तो आपको M लिखना है, और अगर वो feminine gender है तो आपको F लिखना है, ठीक है। तो let's do. First is princess. Now princess is masculine gender or feminine gender? Male है या female होता है princess is male or female? It's a female. Princess is a female gender, feminine gender. Okay, princess is a feminine gender. Number 2 is drake. This we just did, अभी हमने किया था इसको। Drake is masculine और feminine? Male होता है या female होता है? Male, yes. Drake is male, और इसका female होता है duck, और इसका male क्या होगा? Princess का male क्या होगा? Prince. इसका female क्या होगा? Drake का female duck. Next is nephew. Nephew is a masculine gender or feminine gender? Children, nephew is a masculine gender, M.
और इसका फीमेल क्या होगा, नेफ्यू का फीमेल जेंडर, ऑपोजिट जेंडर क्या होता है, नीज। नेफ्यू का फीमेल जेंडर, ऑपोजिट जेंडर होता है नीज। नेक्स्ट इज विक्सन। Is it a male or female noun? Is it a masculine or feminine? Vixen. It's a female. F, feminine. और इसका मेल क्या होता है, विक्सन का मेल, masculine gender. ये तो फीमेल है, विक्सन इज फीमेल. What is the masculine gender of vixen? Fox. Fox, vixen. Next. Number 5, I'll write it here. Bull. Now, bull is what? Masculine or feminine gender? Children, bull is a masculine gender. और इसका फीमेल जेंडर क्या होता है बुल का? What is the feminine gender of bull? Cow. Yes, bull का होगा cow. Next is tiger. Tiger is M or F, male या female? टाइगर का जेंडर क्या होता है? टाइगर इज अ मेल जेंडर और फीमेल जेंडर? चिल्ड्रन, टाइगर इज अ मेल, मैस्कुलिन जेंडर. और इसका फीमेल क्या होगा फिर? टाइगर का फीमेल जो होता है जेंडर, फेमिनिन जेंडर क्या होता है? टाइग्रेस. टाइगर, टाइग्रेस. नंबर 7, एक्टर. ACTOR, एक्टर. एक्टर इज अ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर? एक्टर क्या है? इज इट अ मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर? इट इज अ मैस्कुलिन जेंडर, M. और इसका फीमेल क्या होगा, फेमिनिन जेंडर? एक्ट्रेस. एक्टर, एक्ट्रेस. ओके. देन वी हैव 8. जेंडर. इज इट अ मेल और फीमेल, मैस्कुलिन और फेमिनिन? इट्स अ मेल, मेल जेंडर. जेंडर. और इसका फीमेल क्या होगा? गूज. इसका फीमेल होता है गूज. देन वी हैव नंबर 9, मैम. इसको मैडम भी बोलते हैं लोग, लेकिन वी कॉल इट मैम. एंड मैम इज अ मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर? ये तो इजी है. मैम या मैडम इज फेमिनिन जेंडर. इट इज अ फेमिनिन जेंडर. और इसका मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा? सर. मैम, सर. देन वन मोर वी हैव, आई राइट इट हियर. हीरो. हीरो. हीरो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है? हीरो इज अ मैस्कुलिन जेंडर, मेल होता है हीरो, है ना? और इसका ऑपोजिट जेंडर क्या होगा हीरो का? व्हाट इज द ऑपोजिट जेंडर फॉर हीरो? हीरोइन. इसका जो फेमिनिन होगा वो है हीरोइन. हीरो, हीरोइन. ठीक है. नाउ लेट्स रिवाइज इट. प्रिंसेस, F, दैट इज फेमिनिन. ड्रेक, M मतलब मैस्कुलिन. नेफ्यू, अगेन M मतलब मैस्कुलिन. विक्सन, F मतलब फेमिनिन जेंडर है. देन वी हैव बुल. बुल इज मेल, मैस्कुलिन. देन वी हैव टाइगर. टाइगर इज अगेन अ मैस्कुलिन जेंडर. देन एक्टर इज अगेन मैस्कुलिन जेंडर. Then gander is again masculine gender, and madam is female. F, feminine gender, and hero is masculine gender. और इन सब का हमने फीमेल भी देखा है ना, इसके हम ऑपोजिट जेंडर्स को भी हमने साथ साथ में जाना.
Now children, we have completed the first exercise. आपकी हमने ये first exercise जो थी gender से related, that we have completed. Now rest of the exercises we will do in the next video. आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे. आज हमने कुछ genders देखे, masculine और feminine genders सीखे और पहचानना सीखा कि कौन सा मेल होता है और कौन सा फीमेल होता है, which noun is masculine gender and which noun is feminine gender. Okay, so rest of the exercise we'll do in the next video, and कोई doubt है तो that you can ask me in your online class. Okay, we'll meet in the next video. Thank you.